India is moving towards a significant and leading role in the field of AI, and its indelible mark was clearly visible in the latest episode of Prime Minister Modi's monthly radio broadcast called Mann Ki Baat. The Prime Minister called the AI Impact Summit a major achievement and a turning point in the country's journey towards becoming a developed nation. Prime Minister Narendra Modi shared his thoughts with the citizens in 131st episode of Mann Ki Baat. Prime Minister Narendra Modi highlighted the achievements witnessed during the Global AI Impact Summit in Delhi this month. Prime Minister said the summit has proved to be a turning point in the trajectory of how the world will utilize the power of AI in the future. समिट में मुझे वर्ल्ड लीडर्स और टेक सीईओ से मिलने का भी अवसर मिला। एआई समिट की एग्जीबिशन में मैंने वर्ल्ड लीडर्स को ढेर सारी चीजें दिखाई। मैं दो बातों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। समिट में इन दो प्रोडक्ट्स ने दुनिया भर के लीडर्स को बहुत प्रभावित किया। पहला प्रोडक्ट अमूल के बूथ पर था। इसमें बताया गया कि कैसे एआई जानवरों का इलाज करने में हमारी मदद कर रही है और कैसे 24/7 एआई असिस्टेंट की मदद से किसान अपनी डेयरी और जानवर का हिसाब रखते हैं। साथियों, दूसरा प्रोडक्ट हमारी संस्कृति से संबंधित था। दुनिया भर के लीडर्स ये देखकर हैरत में पड़ गए कि कैसे एआई की मदद से हम हमारे प्राचीन ग्रंथों को, हमारे प्राचीन ज्ञान को, हमारी पांडुलिपियों को संरक्षित कर रहे हैं, आज की जनरेशन के अनुरूप ढाल रहे हैं। Prime Minister highlighted the importance of translating and preserving manuscripts, showcasing India's ancient knowledge, language, and rich heritage into multiple Indian and foreign languages using modern AI avatar. एग्जीबिशन के दौरान डिस्प्ले के लिए सुश्रुत संहिता का चयन किया गया। पहले स्टेप में दिखाया गया कि कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से हम पांडुलिपियों की इमेज क्वालिटी सुधारकर उन्हें पढ़ने लायक बना रहे हैं। सेकंड स्टेप में इस इमेज को मशीन के पढ़ने लायक टेक्स्ट में बदला गया। अगले स्टेप में मशीन रीडेबल टेक्स्ट को एक एआई अवतार ने पढ़ा और फिर अगले स्टेप में हमने ये भी दिखाया कि कैसे टेक्नोलॉजी से ये अनमोल भारतीय ज्ञान इंडियन लैंग्वेजेस और विदेशी भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा सकता है। Prime Minister also hailed the enthusiasm of the youth during AI Summit. He also mentioned the three Made in India AI models launched during this period. Congratulating the countrymen for its immense success, Prime Minister described it the biggest AI summit ever. Bureau Report, DD India. In his radio broadcast, the Prime Minister spoke about Arlen Sherin Abraham, a 10-month-old infant from the state of Kerala, who was one of India's youngest organ donors. In his latest Mann Ki Baat episode, Prime Minister Narendra Modi highlighted the inspirational stories of organ donations. Prime Minister shared the story of 10-month-old infant Arlen Sherin Abraham from Kerala. Her name has joined the ranks of the nation's youngest organ donors. कुछ ही दिन पहले हमने केरला की एक नन्ही मासूम आलिन शेरिन अब्राहम को खो दिया है। महज 10 महीनों में वो इस दुनिया से चली गई। कल्पना कीजिए, उसके सामने पूरी जिंदगी थी जो अचानक खत्म हो गई। कितने ही सपने और खुशियां अधूरी रह गई। उसके पेरेंट्स जिस पीड़ा से गुजर रहे होंगे उसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन
इतने गहरे दर्द के बीच भी आलिन के पिता अरुण अब्राहम और मां शेरिन ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे हर देशवासी का हृदय उनके प्रति सम्मान से भर गया है। उन्होंने आलिन के अंगदान का फैसला किया। आलिन शेरिन अब्राहम आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसका नाम देश के कम उम्र की ऑर्गन डोनर्स में जुड़ गया है। Sharing several other inspiring examples, Prime Minister said that awareness about organ donation is growing recently in the country today. Prime Minister praised organ donors, saying that it helps those in need and also bolsters medical research in the country. Bureau Report, DD India. Prime Minister Modi also presented the changing face of agriculture. Calling farmers true devotees of the earth, he said that they are not just dependent on tradition, but are turning soil into gold through modern technology and value addition. विरोध पटेल नाम के एक युवा किसान से जुड़ी जानकारी वाकई बहुत प्रेरक है। करीब 8 साल पहले तक वे अपने पिता शिवशंकर पटेल के साथ पारंपरिक ढंग से धान की खेती करते थे, लेकिन उन्होंने खेती को नए नजरिए से देखना शुरू किया। अपने खेत के तालाब के ऊपर उन्होंने मजबूत जालीदार ढांचा बनाया, उस पर बेल वाली सब्जियां उगाई, तालाब के चारों ओर केले, अमरूद और नारियल लगाए और तालाब में मछली पालन भी शुरू किया। यानी एक ही जगह पारंपरिक खेती भी हो रही है, सब्जी भी, फल भी, मछली भी। इससे जमीन का बेहतर उपयोग हुआ, पानी की बचत हुई। The Prime Minister also advised people to exercise caution when receiving messages or calls related to KYC updates. He explained how banks periodically perform KYC or Know Your Customer to ensure security of accounts. Take a listen. सभी जानते हैं कि आजकल पेंशन, सब्सिडी, बीमा, यूपीआई सब कुछ बैंक खाते से जुड़ा है। इसी वजह से बैंक समय समय पर केवाईसी करते हैं ताकि आपका बैंक अकाउंट सुरक्षित रहे। हाँ, इसमें भी आपको एक बात याद रखनी है, जो अपराधी हैं वो फर्जी कॉल करते हैं, एसएमएस और लिंक भेजते हैं। इसलिए हमें सतर्क रहना है और ऐसे धोखेबाजों के झांसे में नहीं आना है। केवाईसी या केवाईसी केवल अपने बैंक की शाखा या आधिकारिक ऐप और ऑथराइज्ड मीडियम से ही कराएं। ओटीपी, आधार नंबर या बैंक खाते संबंधी जानकारी किसी को भी न दें और सबसे अहम बात, अपने पासवर्ड को समय समय पर जरूर बदलते रहें।